Hello and welcome to the Scholar IAS, your one-stop solution for the UPSC and State Civil Services examination. I'm Shekhar Chaudhary, your faculty for the current affairs, and in today's lecture, we would be discussing the geography and the environment section. So let's start our lecture. Over here in weekly current affairs, geography and environment lecture, you see a topic, gorilla among 200 endangered species threatened by conflicts. So these are the words of people who are involved in conservation. The western and eastern gorilla were previously classified as same species, although they were more genetically distant from one another than chimpanzees and bonobos. So chimpanzees and bonobos are a smaller version of gorillas. Smaller chimpanzees are called bonobos. Both eastern and western gorilla are critically endangered species. You have to remember this. This is important fact. They are critically endangered, and the eastern gorilla is largest living primate and as a great ape. They are closely related to human beings. So among the all primates, it is largest primate, eastern gorilla. You have to remember this fact also. This is also important fact. There are two species of eastern gorilla. One mountain gorilla that is called GB berengei, and eastern lowland gorilla that is called Gorard's gorilla GB grauri. Do you remember this? Now coming on to the what does it means to be western and eastern gorilla. So in the middle path, in the mid of the Africa to the western coast, there is this region where gorillas are found. They are termed as western gorilla, and over here near Rwanda there is eastern gorilla found that are depicted by the color that is green. So the eastern gorilla are found in Democratic Republic of Congo and northwest Rwanda, southwest Uganda, or this place. And population of western gorilla can be found in Cameroon, over here, Central African Republic, this region, okay, and Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, as well as in large areas Gabon and Republic of Gabon. So Gabon is another country from where the equator passes in the African region. While gorillas are herbivorous, they eat grass or fruits, majorly fruits, grass fruits, and also plants. By grass I mean the stems of long grasses, fine, subsisting mainly on juicy stemmed plants. Once a female begins to breed, she is likely to give birth to only one baby every 4 or 6 years. इसी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि 5 या 6 साल में एक ही बेबी को जन्म दे पाते हैं. ओनली 3 और 4 ओवर हर एंटायर लाइफ टाइम. इसी की वजह से रेट ऑफ रिप्रोडक्शन लो है, और पॉपुलेशन अगर इनकी डिक्लाइन हो जाए एक बार तो कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है. तो अगर आप देखें तो गोरिल्लास के साथ जो प्रॉब्लम है उसको इस पिक में दिखाया गया है कि जहां पर ये ज्यादा लार्जली इफेक्टिव, जो भी चीज इन्हें लार्जली इफेक्ट कर रही है वो ग्रेटर फॉन्ट्स में है, और जो कम इफेक्ट कर रही है वो स्मॉलर फॉन्ट में है. तो जैसे रिक्रिएशनल कम है, फॉसिल फ्यूल इन्हें कम दिक्कत कर रहा है, टूरिज्म इन्हें कम दिक्कत कर रहा है, लॉगिंग क्रॉप्स कम दिक्कत कर रहे हैं. ज्यादा दिक्कत जो करने वाली चीजें हैं वो है हैबिटेट चेंज, वो है माइनिंग, नेटिव स्पीशीज, फायर, वायरसेस, लाइव स्टॉक. ये सब है इनको जो कंपटीशन दे रहे हैं या दिक्कत कर रहे हैं. और इसके साथ साथ मोस्ट सीवियर जो है वो है टुवर्ड्स द डार्कर साइड, और जो लीस्ट सीवियर है वो है टुवर्ड्स द लाइटर साइड. सो यहां देख सकते हैं वॉर्स एक बहुत बड़ा कारण है जो कि डार्केस्ट है यहाँ पर, और वायरसेस भी एक कारण है, और सब ये रेड में दिखाए गए हैं. ये थोड़ा डार्क है लाइफ स्टॉक से जो इनको कंपटीशन होता है या फिर इनको हैबिटेट में दिक्कत होती है. द ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू इलीगल हंटिंग एसोसिएटेड विद आर्टिसनल माइनिंग कैंप्स एंड कमर्शियल ट्रेड. सो इनकी हंटिंग हो रही है इलीगली. माउंटेन गोरिल्ला इज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज. माउंटेन गोरिल्ला क्लाइमेट चेंज से ज्यादा प्रभावित हो रहा है. बोथ द गोरिल्ला आर थ्रेटन्ड बाय हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है इनका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक. तो वो एक कारण है जो दोनों को ही प्रभावित कर रहा है. इबोला,
हैज कॉज, जैसे इबोला, अब ये जो वायरस या वायरस के आउटब्रेक्स होते हैं, इबोला हो गया जो कि आपका वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में एक सियरा लियोन और आसपास की कंट्रीज में आउटब्रेक हुआ था, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, हैज कॉज अ नंबर ऑफ मैसिव गोरिल्ला एंड चिंपैंजी डाई ऑफ इन द रिमोट फॉरेस्ट हार्ट ऑफ प्राइमेट रेंज। और अभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हैदराबाद जू में भी 7-8 जो लायन है वो भी इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना से भी, तो इनको भी ये खतरा है। और उसमें जो कंजर्वेटर थे उनका कहना है कि क्योंकि ये भी मैमल्स हैं तो इनमें भी ऐसे वायरस आउटब्रेक्स के खतरे रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे वायरस चिंपैंजी या ऐसे ही प्राइमेट से इंसानों में आते हैं। इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिट्री एक्सरसाइज विद इन द वर्ल्ड बायोम डाइवर्स रीजन इज वन ऑफ द prime reason for their decline in the population. The conflicts are mainly vitalizing by taking control over the natural resources by various fraction of armed rebellions. तो यहां पर आर्म रेबिलियन चलता रहता है, पर्टिकुलरली कॉन्गो में अगर देखेंगे तो 1960 से 65 तक बहुत बड़ा यहां पर एक वॉरफेयर होता रहा इंटरनल, और अभी भी 2018 में भी वहां पर ऐसी ही सिचुएशन है। तो मिड अफ्रीका के कई रीजन्स में अनस्टेबिलिटी है, और अफ्रीकन चाहे रवांडा वॉर्स हो, अगर आपको ये पता होगा, आपने होटल रवांडा मूवी देखी है तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं, ये पूरा एरिया एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है ड्यू टू वेरियस फैक्ट्स, वेरियस सेक्ट्स दैट आर फाइटिंग विद वन अनदर। यहां देखेंगे आपकी इंक्लूडिंग द डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, डायरेक्ट किलिंग से भी डिग्रेडेशन और ऑफ इकोसिस्टम एंड डिस्ट्रप्टर ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये भी एक कारण है। डायरेक्ट किलिंग ऑफ ईस्टर्न गोरिल्ला इज मोस्टली डोमिनेटेड थ्रेट। ईस्टर्न गोरिल्ला जो ईस्ट में है, जो रवांडा की साइड है, अफ्रीका में जो इधर की साइड है, रवांडा के बॉर्डर पे है, जो उसका जो मेन डोमिनेटिंग थ्रेट है वो है डायरेक्ट किलिंग। और डायरेक्ट किलिंग इन समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रैक्टिसिंग टारगेट्स एंड फॉर फूड एज वेल। तो फूड के लिए भी इसको क्या कर दिया जाता है, यूज करा जाता है। और ऐसा भी देखने में आया है कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होती है और एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता है, वहां पर जो पॉपुलेशन है वहां की वो एनिमल्स को ज्यादा खाने लगती है, उससे भी यहां पर दिक्कत होती है। हंटिंग इज रिलेटिवली माइनर कंसर्न कंपेयर टू डिफॉरेस्टेशन एंड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। हंटिंग भी एक कंसर्न है, पर इसका जो थ्रेट है वो कम है एज कंपेयर टू, हंटिंग से ज्यादा जो थ्रेट है वो है डिफॉरेस्टेशन और पॉलिटिकल अनरेस्ट, जो एक अनरेस्ट का भाव है वहां पर। ड्यूरिंग 1994 रवांडा वॉर फॉर इंस्टेंस 90% ऑफ द लार्ज मैमल्स इन द अकागारा नेशनल पार्क वर किल्ड फॉर फूड और फॉर ट्रेड। सो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो स्टेट है वो कमजोर हो जाए, तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो रॉ एलिमेंट हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं। और अकानारा नेशनल पार्क आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। वियतनाम वॉर almost certainly accelerated the slide of into extinction of जावनास राइनोसोरस। यहां पर ये भी देखने को मिला कि राइनोस की भी पॉपुलेशन पे दिक्कत हुई, और वियतनाम वॉर की वजह से। wars are more likely to erupt when there is a less productive agriculture land available and when drought are frequently। ये particularly अफ्रीकन रीजन्स में है, सोमालिया, सूडान, युगांडा, ऐसी जगहों पर। Therefore, conservation, restoration, and sustainable management of natural resources can help reduce the pressure that drive conflict and improving condition and productivity of the landscape. Sanction, अब ये भी है कि जो ऐसे environmental crime commit करते हैं उनके खिलाफ sanction होनी चाहिए, और ये भी एक तरीका है, उनको persecute करना चाहिए और उनको जेलों में डालना चाहिए। ये भी एक तरीका है वाइल्ड लाइफ को बचाने का। अब जो अगला टॉपिक है वो है आपका ऑर्चिड्स इन फुल ब्लूम इन काजीरंगा नेशनल पार्क। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज अ होम ऑफ ऑर्चिड्स इन इंडिया एंड पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा ऑर्चिड होते हैं। सो देयर आर 35,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड्स इन द वर्ल्ड, और इसमें से 1300 लगभग 1300 इंडिया में पाए जाते हैं। तो 1300 लगभग इंडिया में पाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि 850 से ज्यादा इनमें से जो है, आधे से भी ज्यादा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में, जिनमें हमारे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, सिक्किम, ये राज्य स्थित हैं, वहां पर पाए जाते हैं। तो हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स में भी कुछ जगहों पर हॉटस्पॉट हैं ऑर्चिड्स के।
तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड स्पीशीज इन आर रिकॉर्डेड इन अरुणाचल प्रदेश, नंबर 1 अरुणाचल, उसके बाद ऑर्चिड सेकंड नंबर पे सिक्किम में पाए जाते हैं, और फिर वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग कालिम्पोंग वगैरह का इलाका है, नॉर्दर्न बंगाल, वहां पाए जाते हैं। सो वेस्टर्न घाट्स हैव हाई एंडेमिज्म ऑफ ऑर्चिड्स, जो ऑर्चिड वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं वो केवल यहीं पाए जाते हैं, अन्य कहीं जगहों पे नहीं पाए जाते हैं। ये होता है एंडेमिज्म का मतलब। द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्चिड स्पीशीज इन अरुणाचल प्रदेश इज बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी। अब अरुणाचल प्रदेश में जो डाइवर्सिटी है ज्यादा है, ये टॉपिक है काजीरंगा नेशनल पार्क में ऑर्चिड की ब्लूम का, परंतु वहीं से लगता हुआ अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ ऑर्चिड्स भी कहा जाता है। और इसकी टोपोग्राफी है, क्योंकि यहां पर अलग अल्पाइन, जो कि 3000 मीटर से भी ऊपर की जगहों पर मिलती है, जहां पर ट्री लाइन आ जाती है। ट्री लाइन का मतलब उसके ऊपर पेड़ नहीं उगते हैं। जैसे यूरोप में भी 7-8 कंट्री है, स्लोवाकिया और फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जहां पर आपको ऐसे अल्पाइन वेदर मिलता है, अल्पाइन कंडीशंस मिलती हैं। और सब अल्पाइन से थोड़ा नीचे टेम्परेट वो जगहें होती हैं जो कि आपकी इक्वेटोरियल, भूमध्य सागर और जो पोलर के बीच में जगह होती है, ठीक है, 30 डिग्री से नॉर्थ और 66 डिग्री तक। तो ये जो जगहें होती हैं इनको बोलते हैं टेम्परेट, जहां पर की मौसम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं पाया जाता। ट्रॉपिकल भी है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, और सब ट्रॉपिकल भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ये पूछा जा सकता है कि क्या अरुणाचल में अल्पाइन, सब अल्पाइन, टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप की भी वेदर मिलता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ मिलता है, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ वेदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और ऑर्चिड्स हैव यूनिक, दे आर यूनिक स्पीशीज, shape and ornamentation and have complex floral structure, और सुंदर होते हैं, इनके अलग अलग शेप होते हैं, बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन होता है इनमें, और ब्रॉडली इनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करा जा सकता है। एफिफाइटिक, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स पे जो उग जाते हैं, उनकी डालियों में या स्टेम में कहीं भी चले जाते हैं, इंक्लूडिंग रॉक बोल्डर्स में, पत्थरों के बीच से भी आ जाते हैं। टेरिटोरियल, जो लैंड और क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स का मतलब है जो लताएं जो चढ़ जाती हैं ऊपर पेड़ों पे, और माइक्रो हेटिट्रोफिक, प्लांट्स विच ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम माइक्रोरीकल फंगाई दैट आर अटैच्ड टू रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। तो प्लांट्स के जो रूट्स में होते हैं वहां पर ये अटैच होते हैं, वहां से उन फंगाई से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। द एपिफाइटिक ऑर्चिड्स आर अबंडेंट अप टू 1800 मीटर, तो लगभग 1800 मीटर तक एपिफैटिक ऑर्चिड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं एक छोटी सी आपको ज्योग्राफिकल टर्म में समझा दूं, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारे लगभग 2000 मीटर पे है, और शिमला है लगभग 2200 मीटर पे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एपिफैटिक ऑर्चिड आर अबंडेंट अप टू 1800 मीटर अबव द सी लेवल, और जैसी जैसी हाइट इंक्रीज होती है इनका जो नंबर है वो डाउन होता जाता है, इनकी प्रेजेंस डिक्रीज हो जाती है। टेरेस्टोरियल ऑर्चिड विच ग्रो डायरेक्टली ऑन सॉइल आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन टेम्परेट एंड अल्पाइन रीजन। टेम्परेट रीजन में समझा चुका हूं आपको, 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ से नीचे, और टूवर्ड्स जो कि पोलर रीजन होता है। माइको हेट्रोट्रॉपिक ऑर्चिड्स मोस्टली एसोसिएटेड विद एक्टोमाइकोरियल फंगाई आई फाउंड इन टेम्परेट रीजन, ये भी टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, और आर फाउंड ग्रोइंग विद पैरासाइट इन ट्रॉपिकल रीजन। साथ में पैरासाइट्स के ट्रॉपिकल रीजन में भी पाए जाते हैं, पैरासाइट्स के जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं उनके साथ उगते हुए। अब बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट की, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ऑर्चिड रिसर्च सेंटर इन टिप्पी, जो कि वेस्ट कामेंग आंध्र प्रदेश में है, और ये आसाम के लगभग 70-72 किलोमीटर ही दूर है, 72 किलोमीटर है, और 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। यहां पर एक म्यूजियम भी है, ऑर्चिड्स का म्यूजियम है। तो ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। द एंटायर ऑर्चिड फैमिली इज लिस्टेड अंडर अपेंडिक्स सेकंड ऑफ साइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जिक्र हम बहुत बार कर चुके हैं पहले भी लेक्चर्स में। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। तो एक टाइप का अग्रीमेंट है जिसमें कि
किसी भी वाइल्ड लाइफ, फौना, जानवरों और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके जो अनकंट्रोल्ड व्यापार है उसमें उस पर रोक लगाने के लिए है। 60 से भी ज्यादा कंट्रीज हैं इसमें, इंडिया भी है। Hence, any trade of wild orchid is banned globally. Research on orchids have done for long. The Orchid Research Center in Tippi is one of the pioneering institute of orchid study in India. 1972 में ये establish हुआ था। Orchids like Dendrobium, Phalaenopsis, Oncidium, Cymbidium are quite popular in flower industry as well, और इनको सजाने के लिए बहुत यूज किया जाता है, चाहे वो बुके हो या फिर विदेशों में भी इनको बहुत बेचा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा आय का साधन भी हो सकता है भारत के नॉर्थ ईस्ट के पर्टिकुलरली लोगों के निवासियों के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं काजीरंगा नेशनल पार्क में ऑर्चर्ड ब्लूम की बात हुई है तो यहां काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है और यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके पास अरुणाचल है, यहां पर गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर नगांव डिस्ट्रिक्ट है, तेजपुर है, और आपने अभी सुना होगा यहां पर चुनाव भी हुए हैं। और ये है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिजर्व्स इन इंडिया। इट इज लोकेटेड इन गोलाघाट, नगांव एंड कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, गोलाघाट, नगांव और कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है ये, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो। तो एक सींग वाले गैंडे जो सबसे ज्यादा मिलते हैं वो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं। पूरी दुनिया में डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये भी आसाम में है और बिल्कुल पास है किसके, अरुणाचल प्रदेश के। और सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोज इन आसाम आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा कहां, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काफी गैंडे मिलते हैं और ये दोनों आसाम में है। मच ऑफ द फोकस ऑफ कंजर्वेशन इन काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो बिग फोर पे रहा है, जिसमें राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफलो है, मतलब जंगली भैंसा, और राइनो और एलिफेंट और रॉयल बंगाल टाइगर। और काजीरंगा नेशनल पार्क नंबर 3 पोजीशन पे है टोटल नंबर ऑफ काउंट इन टाइगर एज वेल, और 1100 से भी ज्यादा एलिफेंट्स भी हैं यहाँ पर, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब ये है वन हॉर्न राइनो, इसका ये हॉर्न है जिसको काट के भी ले जाते हैं बहुत सारे। और जब आसाम में उल्फा आतंकवादी भी थे तो वो भी इनको अभी भी हैं, उनकी प्रेजेंस अब कम हो गई है, इनके ये सींग काट के ले जाते थे। ऐसे ही कीनिया और अफ्रीका में भी जो 2 सींग वाले गेंडे होते हैं उनका भी शिकार किया जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में जो सैलानी है वो विजिट कर रहे हैं और बड़े शान से ये वन हॉर्न राइनो जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे। तो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस इज लार्जेस्ट ऑफ 3 एशियन राइनोस and together with African white rhinos is largest of all rhino species. It is listed in vulnerable IUCN International Union for Conservation of Nature की लिस्ट में ये vulnerable में है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ में with at least half of the total population of rhino, इंडिया का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है क्रिटिकल रिजर्व है। इसके अलावा ये तराई के रीजन में भी पाया जाता है गेंडा, ये पर्टिकुलरली दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि है आपकी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में। देव और नेपाल से लगती हुई सीमा में नेपाल में भी विचरण करते हैं, नेपाल में भी काफी गेंडे पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनो, यही वाले। दे प्राइमरीली ग्रेज विद डाइट कंसिस्टिंग ऑलमोस्ट ऑफ ग्रास ही खाते हैं ये, लीव्स, ब्रांचेस ऑफ श्रब्स, ट्री, फ्रूट और एक्वाटिक प्लांट को, जो पानी में उगने वाले प्लांट्स को ये खाते हैं। सो this was all about the lecture that I have for the geography and the environment. उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, and if you have liked this lecture, please do like us and subscribe us on our YouTube channel that is Scholar IAS. साथ ही साथ आप बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए नए अपलोड होते हुए लेक्चर्स की। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.scholars.com पर जाके नया और अपडेटेड मटेरियल पढ़ने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। वी विल बी मीटिंग सून इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।